Hello, my dear. Have a very good day to all of you. Thank you very much. Now, I am going to teach you transformation of sentences. Transformation means whenever a sentence is written in a single form or in any form and we write it into another format without changing the meaning of the sentence. Transformation of sentences means the sentences which are to be changed into another form without changing the meaning of the sentence. Yes, let us see, that is active to passive voice. Active voice is a voice in which we give the stress or focus over the subject, and in passive voice we give the same stress over the object of the sentence. So, we write in this way: whenever active voice, passive voice. Now, see it and make notes of it. Here it is a box, and we keep the cross section. In between it is the place of a verb, and here verb 3. Now, this is the formation of the verb. Here in active voice, the subject of active voice change into the object of passive voice. The subject of active voice change into the object of passive voice, and the object of active voice becomes the subject in passive voice. And always we keep the verb in third form, first form, second form and third form. In order to understand, we require some more formulas to know, as subjects can be the noun, subject, it can be noun or pronoun. That is known as subjective case. In subjective case, we find as Tom, this is the noun, and the objective case of this noun will be Tom. The form of noun does not change in subjective matter. The name should be written in the same way as the name found in subjective case. But we see some change in the part of pronoun, as I. The objective case of I is me. We, us. You, you. They, they, them. He,
him. See her. In another way, you can say active, passive. Now, the subjective case should be written in the form of objective case, that is this one, to change active sentence into passive sentence. The second thing, forms of the verb. Either that is the active and passive. Forms of the verb, that is active, passive. Now, we write verb 1 plus s or es, this is the one. Verb 2 is, am, are, was, were plus verb 1 ing is converted into is, am, are, was, were plus being plus verb third. This one is verb 1, verb 2 is, am, or are plus verb 3 was, were plus verb 3. In this way, we see other formulas. Has, have, or had plus verb 3. Here we write has, or have, or had plus been plus verb third. Now, we can say simple present, simple present, simple past, and this one is a combination of past and present both, and this one is past and present also. Now, note it down please. Be careful to find all these. I think you would have noted it. Besides this, we see the modal auxiliary, can, could, may, might, will,
would, etc. Now with all we use verb 1, that is active you can say, and whenever we have to convert it into passive voice, we write can, could, may, might, will, would, shall should नहीं लिखा, shall, should, shall, should, etc. plus बी प्लस वर्ब थर्ड. देखिए यहाँ कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड इत्यादि, इसको जब हम एक्टिव वॉइस में रहता है तो हम सबके साथ बी का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. नाउ लिसन, this is the way, this is the rule for you. Generally you can find it out as, please do it first. Now I am going to solve active voice into passive voice. In this regard, according to the tense, one by one I am going to solve it. I suppose that you would have written as the subjective case to objective case, forms of the verb along with the auxiliaries and modal auxiliaries for passive voice. Now, as I am going to teach you simple present, how to change simple present active voice into passive voice. Yes, please. Here you find in simple present we see the forms of the verb I, we, you, they, he, she, it. They plural Mohan and Geeta. Now plus verb 1. Clear? Only Mohan plus verb 1 plus s or es in the form of the verb. This is the situation for you. In interrogative sentence we use do and does. In interrogative we use do for plural and does for singular. Whenever we use does, we use verb 1, and also this one is verb 1 in interrogative and negative sentence in both. This is the other thing. Right now I am not going to tell it. Listen it. I am going to write a sentence here. She writes
a novel. She writes a novel. Now, take notice. Note, if the object of active voice is singular, use singular auxiliary. While converting, transforming, from active to passive. If object of active voice is singular, use singular auxiliary as subject, as singular auxiliary with the object, with the object. In passive voice. If object of active voice is singular, use singular auxiliary with the object in passive voice. That will become the subject of active voice, passive voice. And if the object of active voice is plural, use plural auxiliary with the object of passive voice, which is for the subject of passive voice. ये भी वही है, which becomes the, which is for the subject of passive voice. ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको हम लिख के बता रहे हैं। जैसे कि अभी इसमें लिखा गया है सी राइट्स अ नॉवेल, तो सी दिस इज द सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, ए आर्टिकल है तो, और ये नॉवेल ये ऑब्जेक्ट है। तो ये बताएं ऑब्जेक्ट वन है और मोर, मैंने नॉवेल एक है या ज़्यादा, तो अ नावल है यानी कि एक नावल है। तो इस पूरे को हम कंबाइंड करके बोलेंगे कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो अब हम इसको चेंज जब करते हैं, अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तो अ नावल ये एक्टिव है, अब ये पैसिव हुआ, अ नावल, अ नावल है। अब देखिए यहाँ आइए,
ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज सिंगुलर। तो अब हमको, अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा यहाँ, इसलिए अब हमको यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, यानी कि अब हमको कौन सी ऑक्सिलरी यूज करनी है। आपने अभी फार्मूला में लिखा है, अगर कम बैक करेंगे फार्मूला, तो ये जो कंस्ट्रक्शन आपने पहला लिखा है ये, तो इसके साथ आपने क्या किया है, कहा है कि पैसिव वॉइस में इसको लिखने समय क्या किया जाता है, इज या एम या आर के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब थर्ड लगाएंगे, प्लस बाई कर देंगे, और उसके बाद प्लस क्या करेंगे, ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस का नाउन है ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे, यूज कर देंगे। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अ नॉवेल, अब चूंकि ये सिंगुलर है, इज, ये थर्ड फॉर्म होगा इसका। अ नॉवेल इज रिटन बाई हर, अ नॉवेल इज रिटन बाई हर, WRITEN, रिटन, अ नॉवेल इज रिटन बाई हर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया एक्टिव से पैसिव। फिर चलते हैं दूसरा, चलिए देखते हैं। आई डू नॉट ईट मैंगो, आई डू नॉट ईट मैंगो, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको आप कैसे करेंगे ज़रा बताएं। मैंगो, मैंगो, मैंगो इज नॉट ईटेन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, मैंगो, मैंगो इज नॉट ईटन बाई मी, ये भी एक हो गया। आगे बढ़ते हैं। डू यू प्ले अ ड्रम, तो एक बात ध्यान देने की है, जब हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस में लिखते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव या निगेटिव में ही रहता है। ठीक है, हमेशा इंट्रोगेटिव या निगेटिव में ही रहता है, इसलिए हम उसमें चेंज नहीं करते, क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं है, ये एक्टिव से पैसिव है। इन एक्टिव टू पैसिव वी कीप द सेंटेंसेस रिमेन in the same form as it is in its original form or in active form. तो active form, do you play a drum, अब देखिए यू की वजह से यहाँ डू लगा हुआ है, क्योंकि यू प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है,
प्लूरल सब्जेक्ट है, और डू क्या है, प्लूरल ऑक्सिलरी है। डू प्लूरल सब्जेक्ट है और ये यू प्लूरल सब्जेक्ट है और डू प्लूरल ऑक्सिलरी है। ठीक है। प्ले वर्ब है, वर्ब 1 है, और ड्रम जिसे आर्टिकल है और सिंगुलर है, और ड्रम। तो अब हम क्या करेंगे, और ड्रम को पहले लिखेंगे, अ ड्रम, सॉरी अ ड्रम है तो अ ड्रम सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के पहले फॉर्मेशन क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, दो तरह से फॉर्मेशन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब से होता है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी करिए हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। दूसरा फॉर्मेट इसका होता है WH वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये यूनिवर्सल रूल है इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को करने के लिए। दिस इज द यूनिवर्सल रूल टू राइट एन ऑक्सिलरी, टू राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओनली टू वेज हियर वी आर यूजिंग ऑक्सिलरी, with the help of auxiliary first and with the help of WH words first। तो अब जैसे कि इस सेंटेंस को आप ध्यान दीजिएगा तो ऑक्सिलरी पहले आया है, देखिए ऑक्सिलरी पहले आया है डू, उसके बाद आपका सेकंड है यानी कि सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट आया है, उसके बाद आपका ये वर्ब है तो वर्ब आया हुआ है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। अब इसको हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस में कर रहे हैं, ये एक्टिव है, अब इसको हम पैसिव कर रहे हैं। इसके पैसिव का क्या है, अब ध्यान दीजिए, और ड्रम होगा तो मान लीजिए और ड्रम लिखना है आपको, और ड्रम, और ड्रम सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, इज अ ड्रम, इज अ ड्रम। प्ले का प्लेड, इज अ ड्रम प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। इज ए ड्रम प्लेड बाय यू, दिस इज द passive of this one। Now next, अब दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, when does she learn her lesson, when does she learn her lesson। ठीक है। अब देखिए यहाँ दो तरह के ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसको एक ही में ज्वाइन करके बताया जाएगा, हर रिलेशन। ठीक है, हर रिलेशन एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। वेन, अब यहीं से हम शुरू करेंगे, ये एक्टिव है,
ये पैसिव है। वेन, वेन, अब देखिए केवल हमको डच का विशेष ध्यान देना है। वेन इज हर रिलेशन, हर रिलेशन, वेन इज हर रिलेशन लर्नड, LEARN, ईडी लर्न कर दीजिए या लर्न कर दीजिए, दोनों एक ही है, कोई एक उसमें यूज कर दीजिए। लर्न बाय हर, हर का मतलब यहाँ सी से है। ये हर जो है वो इसका है, ये हर रिलेशन एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए कन्फ्यूजन आप नहीं करेंगे। थोड़ा टेक्निकल है इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, आर यू डूइंग वेल? Let us see present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होता है? तो इज, एम और आर होता है। इसके साथ हम किस तरह का वर्ब यूज करते हैं? वर्ब 1 प्लस ING यूज करते हैं सबके साथ, विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। अब इज इसमें क्या होता है? इज सिंगुलर है, किसके साथ यूज होता है? ही, सी, इट एंड विथ सिंगुलर नाउन। देखिए जब कहा जाए नाउन तो आप निश्चित तौर से किसी न किसी व्यक्ति या जानवर के नाम या फिर किसी आइडिया, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आइडिया के नाम को आप जान सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर नाउन, नाउन काइंड्स ऑफ नाउन जो होता है, तो जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन हैं आपके, सब में नाउन एक ऐसी, नाउन इज ए वर्ड दैट इज़ गिवन टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। तो इसमें सबके साथ होता है कि ये किसी न किसी का नाम आ जाता है, उसके साथ हम, जैसे सिंगुलर का मतलब एक, सिंगल से, वन यूनिट ऑफ एनीथिंग एल्स। वन यूनिट है, चाहे आदमी है तो वो भी एक है, सामान है तो भी वह एक ही है। ठीक है, से वन होल में आता है, कोई एकम्युलेशन होता है तो वन होल में आता है, या फिर किसी एक जानवर का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। ठीक, तो ये सब के साथ इज का यूज किया जाता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल बनाया हुआ है आई के साथ। और आर का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है। प्लूरल में होता है आई, वी, यू, दे एंड टू आर मोर नाउन। टू आर मोर नाउन, जैसे अब क्या है, टू आर मोर पर्सन्स, इसको दूसरे हिसाब से लिख सकते हैं, टू आर मोर पर्सन्स। इसके साथ हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। लेट मी गो अहेड।
ये चीज़ें आप सबके साथ हैं। ये आपने डू का यूज किया उसके साथ भी है, डैश का यूज किया उसके साथ भी है, EJMR का यूज कर रहे हैं उसके साथ भी है, सबके साथ एक ही है। चलिए इसमें ING का है। रोहन इज प्लेइंग ट्वाइस। रोहन इज प्लेइंग विथ ट्वाइस कर दें, प्लेइंग ड्रम्स कर दीजिए, DRUM ड्रम्स। रोहन इज प्लेइंग ड्रम्स, मैंने रोहन क्या कर रहा है, ड्रम बजा रहा है। प्लेइंग का मतलब बजाने से होता है, बीटिंग। तो अब ये एक्टिव वॉइस है। दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। तो रोहन इज प्लेइंग ड्रम्स। तो रोहन दैट इज द सब्जेक्ट और डूअर, उसको डूअर भी कह सकते हैं, काम करने वाले को डूअर कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये किसका है, सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर भाई, क्योंकि रोहन अकेला है इसलिए इज लगा हुआ है। प्लेइंग आपका वर्ब हो गया ING, और ड्रम्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये प्लूरल है, ये ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल है। नाउ रोहन इज प्लेइंग ड्रम्स। अब इसको पैसिव बनाने के लिए जैसे मैंने फार्मूला बताया कि ऑब्जेक्ट शुड बिकम द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक्टिव पैसिव, वर्ब वर्ब 1 और एनी वर्ब, वर्ब 3 बिकम्स। तो अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ये सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, और ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ सब्जेक्ट बन गया। ठीक, तो अब इसको भी ऐसे कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ ड्रम्स लिखिए, ड्रम्स। अब एक ड्रम होता तो ठीक है, ये तो एक से अधिक ड्रम है, तो फिर व्हाट वुड बी, विच ऑक्सिलरी विल कम। जैसे कि मैंने बताया, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज सिंगुलर, then this will become the, when it will become the subject of passive voice, according to it the auxiliary will be followed according to the number of the subject, according to the number of the object of active voice, according to the number of the object of active voice. Use the auxiliary with the subject of passive voice. क्यों? क्योंकि यही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया किसका, तो पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट हो गया, तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। अब ये ड्रम्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर ऑक्सिलरी आएगी, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल ऑक्सिलरी आएगी। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल ऑक्सिलरी आएगी। तो ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल का है,
ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें यहाँ आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। थोड़ा सही लिखें, ARE। ड्रम्स आर। अब जैसे कि आपने सुना है इज एम आर के साथ, तो जब इज एम आर होता है, इज या एम या आर होता है, तो इसके साथ हम कौन क्या यूज करते हैं? इज एम या आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। अगर सिंगुलर है तो इज लिखा जाएगा, आई है तो एम लिखा जाएगा, प्लूरल है तो आर लिखा जाएगा, प्लस बीइंग किया जाएगा और वर्ब थर्ड किया जाएगा। तो ड्रम्स आर बीइंग, ड्रम्स आर बीइंग, फिर होगा प्लेड बाई रोहन। ड्रम्स आर बीइंग प्लेड बाई रोहन। तो आपने ये देखा कि ये इसका पैसिव बन रहा है, ध्यान से देखते रहिए। तो फिर ठीक है, आई सपोज दैट यू पीपल हैव गॉट इट, एंड in my next video you will see the further part of transformation of active to passive. Only simple sentence of present continuous I have taught you. You are supposed to revise the total portion, and next video, next day we will meet once again and will continue our study. Up to that, good day, have a nice day. Thank you very much. Bye bye.